डाल के बात कर पाता था. नाउ आई एम टॉकिंग टू ब्लैक टाइल्स. सो अगर आपकी एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स परमिट करती हैं, सो आई वुड लाइक इफ यू कुड पुट ऑन योर वीडियोस, तो जिससे मैं आपकी आंख देख सकूं एंड थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होएगा. दैट्स व्हाट आई माय सिंसियर रिक्वेस्ट वुड बी. नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूं. Yes, so this is how my screen would look and ये PPT दिखेगी. Please, अगर आप एक thumbs up raise करेंगे, are you able to see the screen properly? Every one of you, अगर आप एक thumbs up दे देंगे तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा acknowledgement होगा. Thank you, Kisha Singhvi. Thank you very much, Kisha. That's so nice. So अगर मेरे को ऐसे thumbs up आते हैं तो थोड़ा सा Parvati, thank you very much. So this is a good thing. So with this, are you able to hear me all very nicely? So am I good to go? Chalo, let's all go. Thank you, Sanname. You've given an acknowledgement. Chaliye, aage बढ़ते हैं. So what is this that we are doing? We are doing Excel in board exams. We at UT have been the board leaders for last 25 years, over 25 years, and we exactly know how to excel in board exams. So uske upar ek webinar hai today. First, let me tell you what is the concept of these events. So on a Sunday morning, you will find me in a webinar or doing something where I'm taking value-added lecture workshop for students, primarily to promote awareness among students. मैं कभी इंजीनियरिंग करियर्स की बात कर रहा होता हूँ, कभी स्टडी अब्रॉड की बात कर रहा होता हूँ, कभी मैनेजमेंट करियर्स की बात कर रहा होता हूँ, कभी बोर्ड एजुकेशन की बात कर रहा हूँ. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड एजुकेशन. The idea is to thank you, Kajal, for putting on your video. I can see you. That's so nice. It helps you to take informed decisions. That's the whole idea of these webinars. This is 14th in the series this year, Excel in board exams. Coming up more webinars, follow our Facebook page or our website, and you will know what are we talking about in the next coming weeks. In fact, next coming weeks, we are doing bahut badhiya, all of them very relevant topics. Next week, we are talking 1 week from now, we are talking about study abroad. Uske baad we are talking about careers in management. Then we are talking about careers in engineering, careers in commerce. Aise alag-alag every week, follow our website. We are doing some wonderful things in the next 4 weeks. And we are doing some very exciting things for student value education. And these webinars are an excellent source where you come to know information at your home itself. चलिए, आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा I'll very quickly tell you about universal tutorials. Then I will talk about pain points of board students. I will tell you आपकी unique needs क्या हैं और हम क्या feature solution लेके आए हैं. A very powerful solution हम लेके आए हैं और वो क्या है वो solution, वो मैं बात करूंगा. I'll tell you some evidence कि ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि ये solution है. There is some evidence, data backed है, वो दिखाएंगे. And then I'll throw the house open for question and answers. So this is what would be the agenda. So सबसे पहले, now before we start, नीलेश सर, आपने ये कोई पोल बनाया है क्या? No sir, there was no instructions. So anything we can quickly make it. You can tell me. अगर आप बना सकते हो quickly, तो I would like to know the audience की constitution, कि कितने बच्चे 9th में, कितने बच्चे 10th में, कितने बच्चे 11th में और कितने बच्चे 12th standard में. So just give us 2 minutes. My colleague Nilesh will bring a Zoom poll on screen, तो आप उसको प्रेस करिएगा. अभी कोई चैट बॉक्स वगैरह में मत डालिएगा. My colleague Nilesh would create a Zoom poll in 1 minute. This will help us to understand आपकी requirements क्या क्या हैं. So वो जब Zoom poll live होगा तब आपको बटन प्रेस करिएगा. Just hold on for a minute. My colleague Nilesh is making a poll and then he will make the poll live. So pick up those options accordingly. So we do at UT, we conduct test series for all grades. So this will just help us to know the audience ki kya constitution. Nilesh sir, tell me whenever you're ready. Yes sir, I'm launching the poll. Okay. Yeah, the poll is on the screen. So you have a poll, select what is most applicable to you. आप बच्चा कौन सी क्लास में है? You have to select one answer and then submit your response.
Once everybody answers, then sir will display the results. Yeah, I think everyone has answered. So I will take the poll and sharing the results. So, okay, we have 65% of you in grade 10th, and that's good to know. Some of you in 9th standard, some of you in 11th standard, and some of you in 12th standard. Fair enough. That helps me to understand my audience constitution. Okay, now let's move on and move forward. So, moving forward, about Universal Tutorials. Universal Tutorials is an organization which was started about 25 years back, way back in 1998. Presently, we have coached in our 25 years journey, we've coached 35,000 plus students in our journey of 25 plus years. So we've touched their lives and impacted, and इसका बहुत मजा आता है, and I'm reaping the benefits. Where कई बार as a teacher, this is the best fruit you get out of a teaching career. जहां जाते हैं वहां you get students and अरे सर आपने हमको पढ़ाया था, and that feeling is so surreal. बहुत मजा आता है वो feeling का, because these are students जिनकी lives को काफी बड़ा change and हमने help करा है, value add किया है. At UT, we are located in 6 branch locations, and we are present pan-India with our test series product, and pan-India students join us for our test series. So that's about Universal Tutorials. We have primarily programs in board exams. 3 broad areas में हम पढ़ाते हैं board exams. Indian exams, like board exams are CBSE, ICSE. Indian exams are IIT, JEE, NEET, IPM, management entrance. And we also do study abroad, SAT, GRE, TOEFL, IELTS, university application. So ये 3 broad areas में बात कर रहे हैं. आज का webinar is coming from our segment of board exams. Board exams में what do? We do coaching for standard 9, 10 CBSE, ICSE and 11, 12th, and we do test series. Test series 9, 10th and 12th की test series run करते हैं with and without doubt solving. टेस्ट सीरीज कोचिंग में कोचिंग प्लस टेस्टिंग दोनों होता है. टेस्ट सीरीज में वी गिव ओनली टेस्ट सोल्यूशन. बच्चा अपने आप पढ़ रहा है या अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ रहा है, एंड हमारे पास ओनली टेस्टिंग के लिए आ रहा है. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम व्हिच इज टेस्ट सीरीज. ये क्या है टेस्ट सीरीज एंड कैसे हम बच्चों की हेल्प करते हैं, इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. चलिए, लेट्स गेट इनटू द स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या है. That obviously everybody is wanting to score high marks. तो pain points क्या हैं, आपका problem areas क्या है. अगर उनको हम uniquely समझने की कोशिश करें, so आपको बहुत ज्यादा practice नहीं मिल पाती है, written practice. So that is one pain point. Engaged in other non-academic activities. कुछ बच्चे 11, 12th में they are busy in IIT, NEET preparation, board exam का नहीं है, सॉरी हियर इट्स नॉन एकेडमिक, कि आप स्पोर्ट्स में बिजी हो या किसी और में बिजी हो. सो दैट्स व्हाई यू डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू प्रैक्टिस, या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, नीट एंड बोर्ड एग्जाम के लिए उतना समय नहीं है. सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस. थर्ड, यू आर गोइंग टू स्मॉल क्लासेस और होम ट्यूशन, और वो लोग कोई स्ट्रक्चर में पढ़ाते नहीं है. तो आप जा रहे हैं, आपके एक क्लास में जा रहे हैं, वो लोग पढ़ा देते हैं अच्छा, लेकिन टेस्टिंग बहुत अच्छी नहीं करते हैं and structured testing नहीं करते हैं. So you want a structured testing platform. You make silly mistakes while doing exams, and then in the exam time you realize अरे यार ये अगर पहले से मालूम होता तो मैं ये गलती नहीं करता. एग्जाम में एंजाइटी आती है, आपको एग्जाम से डर लगता है, पैटर्न आपको मालूम नहीं है. Now CBSE, ICSE इन सब में बोर्ड एग्जाम में पैटर्न पहले से डिफाइंड है, लेकिन वो क्या डिफाइंड पैटर्न है आपको नहीं मालूम है. आपको तो पहली बार 10th स्टैंडर्ड है आपका, you are doing it for the first time in 10th standard. Although it's a defined pattern, पिछले साल भी वही पैटर्न था, इस साल भी वही पैटर्न है, बट आपके लिए नया है. So you are not aware of that pattern. No feedback mechanism on what needs to be improved. अगर ये सब आपके पेन पॉइंट्स हैं, our test series will help you look after, take care of all these pain points. चलिए, let's understand ये सारे पेन पॉइंट्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले we understand our customer correctly, कि हमारा कस्टमर कौन है. हमको लगता है कि हम हमारे कस्टमर को 3 कैटेगरीज में डालते हैं. आप सब बच्चों को जो आज वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके ये पेन पॉइंट्स हैं, आई होप आई हैव अंडरस्टूड माय कस्टमर करेक्टली. फर्स्ट कस्टमर इज अ हाई ड्राइवर, इज अ सेल्फ स्टडी कस्टमर. कि आप चाहे किसी के पास ट्यूशन के लिए नहीं जा रहे हो, आप खुद अपने आप पढ़ रहे हो, आपको स्कूल में सब समझ में आ रहा है,
you are doing it yourself, but you need एक additional exam practice चाहिए. So you are a high driver student. और a second customer is a help seeker. आपका मम्मी पापा या कोई ट्यूशन टीचर पढ़ा रही है, लेकिन आपको हेल्प चाहिए कि मम्मी पापा पढ़ा तो देते हैं मैथ्स, लेकिन पापा वो मैथ्स का एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. He doesn't have so much time from office कि वो आपको एग्जाम दे सके और फिर वो खुद बैठ के करेक्ट कर सके. So you want somebody who can just conduct exams at your pace, at your flexibility. Third parent is that student is somebody जो बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज में लगा हुआ है, वो खेल कूद में लगा हुआ है, बिजी है, या IIT में बिजी है, तो स्टैंडर्ड 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए उसके पास समय नहीं है. तो ऐसे 3 हम नीड्स पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करा है, उनके लिए वी आर ऑफरिंग दिस सोल्यूशन. आई थिंक आप सब इनमें आते हैं. अगर नहीं आए तो एट द एंड ऑफ माय सेशन प्लीज रेज क्वेश्चंस कि अनुभव सर आपने हमको नहीं आइडेंटिफाई करा. तो आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू नोइंग कि मैंने किसको मिस किया है. मेरे हिसाब से दिस इज द ब्रॉड कैटेगरीज व्हिच वी आर टॉकिंग. अब आप लोगों की नीड क्या है? आपकी नीड, ऐसे बच्चों की नीड बोर्ड एग्जाम में क्या है? आपकी नीड्स इज प्राइमरीली यू वांट अ रेगुलर एंड अ स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस. कोई एक चाहिए जो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सब कुछ पूछना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड हो जाने चाहिए. ऐसा नहीं है कि यार नॉन स्ट्रक्चर्ड है, नहीं, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड और रेगुलर होना चाहिए. एन एफिशिएंट टूल कि कम टाइम से उतना काम कर लिया तो बोर्ड एग्जाम निकल जाना चाहिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फोकस के बावजूद भी IIT की तैयारी कर रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम का यू आर टेकिंग केयर. तो दैट्स व्हाट इट शुड बी. टू आइडेंटिफाई, वो ये बताना चाहिए टेस्ट के बाद मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता है, मैं किसके क्या पढ़ूं मैं. तो एटलीस्ट मेरे को वो टेस्ट में बता दे कि मेरे को क्या आता है और क्या नहीं आता है. जो नहीं आता फिर मैं उसके ऊपर फोकस करूं. सो इट शुड हेल्प मी डू दैट. इट शुड गिव मी अ रेगुलर फीडबैक. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं काफी सारे कामों में बिजी हूं, मेरी खुद की व्यस्तता है. इट शुड अलाउ मी टू टेक टेस्ट वेयर आई वांट, व्हेन आई वांट, व्हाट आई वांट. इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है. ये पॉइंट नंबर 5 पे, फ्लेक्सिबिलिटी. सो वी वुड टेक केयर ऑफ दिस. तो व्हाट डू वी हैव नाउ? बिफोर वी गेट इनटू एंड सॉल्यूशन समझाएं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बोर्ड एग्जाम क्या है. व्हाट इज बोर्ड एग्जाम? बिकॉज हम जिसका सोल्यूशन दे रहे हैं तो अपन ने क्या समझ लिया अभी तक? वीव अंडरस्टूड कि अपन को कैसे बच्चे हैं. बच्चे 3 तरह के बच्चे हैं. वीव अंडरस्टूड कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, वो समझ लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपना चैलेंज क्या है. चैलेंज इज बोर्ड एग्जाम. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बोर्ड एग्जाम का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है. सो इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बोर्ड एग्जाम, देन वी विल बी एबल टू ऑफर अ वेरी गुड सोल्यूशन. सो वी नो द नीड्स, हमको क्या चाहिए वो मालूम है. लेट्स अंडरस्टैंड द टारगेट. बोर्ड एग्जाम क्या है? बोर्ड एग्जाम इज, सबसे पहले मैं कहता हूं इट्स एन एग्जाम ऑफ द नोन. एग्जाम ऑफ द नोन मतलब नोन का मतलब इज वेरी सिंपल, हमें मालूम है. बोर्ड एग्जाम इज एन एग्जाम ऑफ द नोन, जहां पे वही पूछा जाता है जो हमें मालूम है. सर समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप. प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, एग्जाम्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. आप एग्जाम ऑफ द नोन का मतलब आपको CBSE या ICSE बोर्ड में वो लोग प्री डिफाइंड पेपर स्ट्रक्चर पैटर्न देते हैं. कितने सालों से बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं. आपके मम्मी पापा अगर कोई मेरा सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, जब 20, 25, 50 साल पहले भी बोर्ड एग्जाम ऐसे ही होता था कि पेपर स्ट्रक्चर CBSE की वेबसाइट पे, ICSE की वेबसाइट पे सैंपल पेपर एज वी स्पीक ऑलरेडी रिलीज हो, जहां पे उन्होंने ये बोला है कितने 3 मार्क के सवाल, कितने 2 मार्क के सवाल, हाउ मेनी 1 मार्क क्वेश्चंस, एवरीथिंग दे हैव डिफाइंड ओवर. तो वी एग्जैक्टली नो कि कैसे कितने मार्क्स का पेपर कहां से कैसे आने वाला है. प्लस वी ऑल्सो नो कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे. क्वेश्चंस 3 ही जगह से आएंगे, टेक्स्ट बुक से, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर से एंड पॉपुलर रेफरेंस बुक से. यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चंस. हमारी टेक्स्ट बुक के पीछे छपे हुए हैं वो क्वेश्चंस. और डू दे ऑफन रिपीट दीज क्वेश्चंस? यस. अगर अपन पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो वही सवाल आते हैं. डू दे ऑफन रिपीट? So this is called as an exam of the known. Now अगर 1 मिनट आपको समझाऊं, are all exams of the known? No, not necessarily. जैसे आप आज से 2 साल बाद जो बच्चे 10th में हैं और या जो बच्चे 12th में हैं वो अभी लिखेंगे IIT का एग्जाम, नीट IIT के एग्जाम में, do they often repeat questions? No, they never repeat questions. 30 साल में अभी तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है. So आगे चल के not necessarily it's an exam of the known. हाँ, वो लोग सिलेबस डिफाइन करते हैं बट वो लोग क्वेश्चंस बताते नहीं है क्या पूछेंगे और क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते. और आगे चलते हैं, आप ग्रेजुएट होने के बाद IAS की परीक्षा लिखेंगे,
अभी एक मूवी आई थी ना बहुत फेमस, 12th फेल, उसमें आईएएस की परीक्षा होती है, उसमें जनरल नॉलेज का एक पेपर आता है, वो आई वुड नॉट कॉल इट एज एन एग्जाम ऑफ द नोन। वो लोग बोलते हैं जनरल नॉलेज, दे डोंट इवन डिफाइन सिलेबस, दे डोंट इवन डिफाइन स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं बताते। अब वो जनरल नॉलेज में इंडिया यूएस रिलेशनशिप पूछेंगे या इंडिया या रशिया रिलेशनशिप पूछेंगे, कुछ नहीं बताते। इट्स अप टू देम क्या पूछेंगे। सो दैट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ द नोन। बट बोर्ड एग्जाम, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, बोर्ड एग्जाम इज एन एग्जाम ऑफ द नोन, जहां पे प्री डिफाइंड पेपर स्ट्रक्चर होता है। वो पेपर स्ट्रक्चर सबको मालूम है, इट्स पब्लिक नॉलेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स को मालूम है। यू कैन गो टू www.cbse.nic.in या आईसीएसई की वेबसाइट पे चले जाइए। ऑल ऑफ दी नेक्स्ट ईयर के 2025 के मार्च में जो पेपर होने वाले हैं, उनके सारे सैंपल पेपर्स एज वी स्पीक हैव बीन रिलीज्ड, और पेपर वैसा का वैसा आएगा। और क्वेश्चंस कहां से आएंगे? टेक्स्ट बुक के पीछे से, प्रीवियस 10 साल के ऑफन रिपीट करते हैं क्वेश्चंस एंड पॉपुलर रेफरेंस। अगर बोर्ड एग्जाम ऐसा है तो हमको कैसे इस बोर्ड एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए? तो वी एट यूटी, मतलब लेट्स अंडरस्टैंड, दो तरह की अप्रोच है। एक अप्रोच है जिसको मैं कहता हूं गैम्बल अप्रोच। गैम्बल अप्रोच मतलब, लेट मी, कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, अनुभव सर आप अगर इतना ज्यादा बोर्ड एग्जाम को समझते हैं, 25 साल से आप ये बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं, तो आप मेरे को वो सेट ऑफ क्वेश्चन दे दीजिए ना, 100-200 सवाल दे दीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मैं वो सॉल्व करूंगा और फिर मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर लूंगा। अब इट इज एन एग्जाम ऑफ द नोन, 1000 सवाल है। लेट्स अंडरस्टैंड, टोटल 15 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में 101 सवाल या 70-80 सवाल, तो टोटल 1000 सवाल है। 1000 में से कुछ 30-40 सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको 100 सवाल 200 सवाल का एक बैंक दे दूं, अब उसमें से कुछ आ जाएंगे तो दैट वुड बी अ गैम्बल अप्रोच, कुछ सही हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी द बेस्ट अप्रोच? बेस्ट अप्रोच वुड बी अ गारंटीड अप्रोच। और गारंटी अप्रोच में क्या होगा, क्या एक रेगुलर स्ट्रक्चर के थ्रू अब मैं वो सारे के सारे सवाल ही सॉल्व कर लूं ना यार, जितने सवाल आ सकते हैं। अगर मैं वो सारे सवाल अगर मैं कर लूं तो फिर मेरे को गारंटी है कि मैं सब कुछ सही करूंगा। दैट इज व्हाट यूटी इज टॉकिंग अबाउट, कि ये कैसे कर सकते हैं गारंटी अप्रोच। सो लेट्स अंडरस्टैंड यूटी की अप्रोच। यूटी क्या करता है? यूटी ऑफर्स, सबसे पहले हम, हमारा एक स्टडी मटेरियल है वॉल्यूम्स, जिसमें हमने ये सारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दे रखे, सारे सवाल हमने इकट्ठे कर, और फिर हमने ये एक टेस्ट सीरीज दे दी, जिसको टेस्ट सीरीज को हमने, ये टेस्ट सीरीज जो आप हम बात कर रहे हैं, इसमें इट इज डिवाइडेड, मैं भी 2 मिनट में और समझाऊंगा कि इट इज डिवाइडेड इन चैप्टर टेस्ट एंड फुल टेस्ट। उसके अंदर ऑलमोस्ट उस सब्जेक्ट के सारे टेस्ट का हम रिटर्न प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप लिखोगे तो सारे चैप्टर्स टेस्ट आपने क्वेश्चंस लिख लिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर। So this is UT test series. इसका नाम is उड़ान, a very popular program across India, taken by many students. करीब more than 15,000 students across India write this exam. UT test series उड़ान, which is available on online as well as physical platform. क्या है ये? Let me explain. What is test series? So it is only tests. सबसे पहले you have to understand, it is no coaching. हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ाते हैं हमारे सेंटर्स में, लेकिन today we are only talking about test series, जहां पे हम टेस्ट्स ले रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, क्या कंपोनेंट है? सबसे पहले देयर आर चैप्टर टेस्ट्स। चैप्टर टेस्ट हमने हर एक सब्जेक्ट को, मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, आपके स्कूल के हिसाब से चैप्टर्स में तोड़ दिया, अलग अलग चैप्टर्स में तोड़ दिया। तो दीज आर चैप्टर टेस्ट। सो सपोज अगर मैथमेटिक्स में 12 चैप्टर है तो 12 चैप्टर टेस्ट, सोशल में अगर 22 चैप्टर है तो 22 चैप्टर टेस्ट। तो मैं इसको आपको दिखाता हूं और एक एक करके दिखाता हूं, साथ में आई शेयर माय स्क्रीन। 1 सेकेंड रुकिएगा, ये अलग अलग जगह है, प्लीज पे अटेंशन एंड बी विथ मी। तो मैं स्क्रीन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं टू टेक यू थ्रू अनदर थिंग। जैसे ये 10 सीबीएसई, 10 सीबीएसई में मैथ्स में 14 चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर का एक टेस्ट है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ये इनके स्कूल में है। ऐसे ही मेरे पास 10th आईसीएसई है, मेरे पास 9 सीबीएसई है, 9th आईसीएसई है, 12th स्टैंडर्ड है, सबके अलग अलग हैं। मैंने एक सैंपल के लिए अभी ये एक खोल रखा है, अगर आपको अलग का चाहिएगा तो मैं अलग का भी दिखा दूंगा। तो ये हो गए चैप्टर टेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चंस लिख के रखिएगा,
so that you can ask me after I complete chapter test. Then there is mid test, mock test. MT stands for mock tests. फुल बोर्ड पैटर्न टेस्ट, ये पूरे 3 घंटे के टेस्ट होते हैं और इसमें कितने देते हैं? नवंबर में 1, दिसंबर में 1, जनवरी में 3, फरवरी में 4, 4 मॉक टेस्ट. हर एक सब्जेक्ट में देर आर 4 मॉक टेस्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी. दीज आर मॉक टेस्ट. और हर टेस्ट के बाद आपको क्या मिलता है? हर टेस्ट के बाद आपको एक मॉडल आंसर पेपर मिलता है. मॉडल आंसर पेपर इज, जैसे ही आप वो टेस्ट लिखते हो और वो टेस्ट खत्म करते हो तो मॉडल आंसर पेपर मिलता है. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस मॉडल आंसर. मॉडल आंसर इज, ये अगेन लेट मी टेक यू थ्रू अ स्क्रीन जहां पे ये आपको दिखेगा. ये रहा. अब जैसे ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट में ये क्वेश्चन पेपर है, ये चैप्टर टेस्ट आपको टिपिकल दिख रहा है. तो ये कितने मार्क का है? 2 मार्क का, 2 मार्क का, 2 मार्क का. इसका फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये. तो इसका मॉडल आंसर कैसा दिखेगा? ये पूरे स्टेप वाइज मार्किंग के साथ, कि अगर आपने ये स्टेप लिखा तो इतने 1 नंबर मिलेगा, ये स्टेप लिखा तो ये नंबर मिलेगा. दूसरा क्वेश्चन ये लिखना है, ये लिखना है, पूरा फुल डिटेल्ड मॉडल आंसर. नाउ दिस is available immediately after the test. So there is chapter tests, there is mock tests. Chapter test जितने चैप्टर्स हैं उन सबके एक एक का चैप्टर टेस्ट है. मॉक टेस्ट कितने? एक सब्जेक्ट में 4 मॉक टेस्ट हैं. देन हर एक के बाद यू गेट अ मॉडल आंसर पेपर. देन यू गेट चेक्ड आंसर कॉपी. आपने जो लिखा उसकी चेक्ड आंसर कॉपी मिलती है आपको. दिस इज चेक्ड बाय अ टीचर एंड देन डाउट सॉल्व. So these are some product components. अब ये कैसे करे जाते हैं? What we do is we have something called as chart 1. मैं ये समझाता हूं आपको. हम आपको जो भी आप ज्वाइन करते हैं, 10 CBSE, 10th ICSE, 12th स्टैंडर्ड, जो भी आप ज्वाइन करते हैं, आपको एक चार्ट देते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लिस्ट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लिस्ट है. एग्जाम्पल के लिए अब मैंने उस टाइम 10 CBSE दिखाया था, अब मैं 10th ICSE खोलता हूं. 10th ICSE में ये ऐसे आपको चार्ट्स मिलेंगे. ये पूरा डिटेलिंग है. अब ये 10th ICSE की डिटेलिंग है. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. आर यू सीइंग? अब 10th ICSE में मैथ्स में कितने चैप्टर हैं? 25 चैप्टर हैं. तो 25 के 25 चैप्टर के लिए चैप्टर टेस्ट है. फिजिक्स में कितने हैं? फिजिक्स में 12 हैं, तो 12 के 12 चैप्टर टेस्ट है. केमिस्ट्री में 13 है, 13. बायोलॉजी में देर आर 15, तो 15. हिस्ट्री में 14. ज्योग्राफी में अनदर 14. हर एक चैप्टर का एक चैप्टर टेस्ट है और उसका एक कोड बनाया हुआ है, G1, G2 ऐसे. इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन. ये हुआ 10th ICSE. ऐसे ही अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, तो 12th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही एक हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, ये मैथ्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी 13 है, तो 13 के 13 चैप्टर टेस्ट. अप्लाइड मैथमेटिक्स में 10 है. फिजिक्स में so on and so forth. I hope I am making myself clear. I'll pause here for just about 10 seconds so that I'm making myself clear. आपको कुछ लिखना है तो लिखिएगा, कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो उसका पॉइंट लिखिएगा. मैं जब पूरा सेशन कंप्लीट कर लूंगा तो आप मेरे से फिर पूछ सकते हैं कि ये क्या है. So there are, we provide you charts और चार्ट में कोड्स प्रोवाइड करते हैं. So हर एक चार्ट में we give you subject wise topic list. Next we provide you chart 2, recommended test slots, कि ये जो टेस्ट हैं ये कब लेने चाहिए. तो वी हैव, नाउ लेट्स गो थ्रू सम recommended chart slots में जाते हैं वापस. तो recommended chart slots, ये चार्ट्स थे, तो ये कब लेने चाहिए? ये इस टाइम पे लेने चाहिए भाई, इस दिन लेने चाहिए. ये हमारे सारा रिकमेंडेशन है. ये अप्रैल से लेकर नवंबर तक आपको ये स्लॉट्स लेने चाहिए. संडे को ये वाला ले लो, ये वाला ले लो. सो दीज चार्ट्स हेल्प यू टू नो कि आपको कब लेने चाहिए. और फिर नवंबर में मॉक टेस्ट्स. तो नवंबर में एक टेस्ट होगा, फिर दिसंबर में दूसरा मॉक टेस्ट होगा, फिर जनवरी में तीसरा होगा और फिर फरवरी में चौथा होगा. सो ऐसे हम रेकमेंडेड टाइम बताते हैं कि इस टाइम पे लेना चाहिए. So we are talking about
कि सब्जेक्ट वाइज हर एक में हम देते हैं, फिर रेकमेंडेड टेस्ट स्लॉट्स देते हैं चार्ट 2 में आपको पब्लिश करके, और चार्ट 3 इज आप अपना टेस्ट शेड्यूल बना सकते हो। चार्ट 3 इज आप अपना टेस्ट शेड्यूल बना सकते हो कि भाई आप कब लिखोगे, आप कौन सी तारीख को लिखोगे क्लास टेस्ट मैथ्स में, मॉक टेस्ट कब लिखोगे, अप्लाइड मैथ्स में कब लिखोगे, ये आप अपना शेड्यूल बना सकते हो। अनुभव सर समझ में नहीं आया कि ये आप क्या बोल रहे हो कि हम अपना शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट, कि ये मैंने सैंपल्स ऑलरेडी आपको दिखा दिए, क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर और ये चार्ट्स के। सो आई मूव ऑन, ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी, मैं अपना शेड्यूल कैसे बना सकता हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इज, if you'll understand and appreciate, flexibility is, तीनों तरह की फ्लेक्सिबिलिटी यूटी टेस्ट सीरीज देता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ प्लेस, आप अपने घर पे लिखो या क्लास पे आके लिखो, आपको जब चाहे लिखना है 24/7 वो, और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप कर सकते हो। अब ये कैसे है ये फ्लेक्सिबिलिटी, मैं वो समझाता हूं। वी हैव एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज उड़ान, और उस उड़ान प्लेटफॉर्म पे वी हैव नाउ क्रिएटेड दिस टेस्ट सीरीज, तो वहां पे आप ले सकते हो। अब अगर आपको फिजिकल सेंटर पे लिखना है, हमारे फिजिकल सेंटर्स पे, तो आपके पास सुबह 11 से शाम को 7 बजे का समय, यू कैन वॉक इन टू आवर फिजिकल सेंटर एंड राइट इट बिटवीन 11 to 7। अगर हमारा फिजिकल सेंटर है और वहां पे है तो आप वो ऑप्शन ले सकते हो। बट अगर हमारा फिजिकल सेंटर नहीं है एंड आपको अपने घर से करना है, रात को 2 बजे आपको लिखना है, तो आप हमारे उड़ान प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो। दैट्स अबाउट प्लेस, तो आप जब चाहो लिख सकते हो। सो इफ यू वॉक इन एट द फिजिकल सेंटर एंड यू से, वो जो चार्ट्स मैंने दिखाए थे, चार्ट 1, 2, 3, चार्ट 1 में आपने बोला मेरा मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री रेडी है, तो मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री आप क्या करोगे, लेट मी गो बैक, आप ये ग्राफ पे जाओगे और इस ग्राफ पे आप मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का, आप ये कोड नंबर करोगे M8 से आप फिजिकल सेंटर पे जाके बोलोगे मेरे को M8 पेपर लिखना है, दे विल गिव यू द M8 पेपर, आप बैठो, आप आधा घंटा वो लिखो एंड सबमिट इट टू अस। नो क्वेश्चंस आस्क्ड कि आप पहले कोई टाइम लेना है, कुछ टाइम लेने की जरूरत है। ऑनलाइन आप M8 सर्च करो हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपको M8 मिल जाएगा एंड M8 आप डाउनलोड करो एंड यू राइट इट। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच यू गेट in terms of place. टाइम, आप ऑनलाइन हो, आपको रात को 2 बजे लिखना है, आप हमारा उड़ान प्लेटफॉर्म खोलो, डाउनलोड दैट पेपर, वो आ जाएगा। देन टेक अ सिंपल, आपका सिंपल ये स्टेशनरी, और इस पे आप खुद ही लिख लो। वंस यू राइट इट, यू अपलोड इट एंड वी विल करेक्ट इट एंड सेंड यू बैक योर करेक्टेड आंसर कॉपी। सो टाइम आप कभी भी लिख सकते हैं। टॉपिक सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस ले लीजिए, आपको जो लिखना है आप उस टाइम पे लिखें। वी रेकमेंड अ शेड्यूल, हमारा चार्ट 2 में पूरा रिकमेंडेशंस हैं, यू कैन फॉलो अवर रिकमेंडेशंस। हमारी रिकमेंडेशन आपको मैच नहीं करती है कि आगे पीछे करना है, यू कैन पिक एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, यू कैन डू दैट। सो दैट्स हाउ इज द फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए, सो नाउ ये जो सब मैंने बोला, लेट मी प्ले सम वीडियोस फॉर यू which will help you understand जो मैंने बोला, all of it in a video format also. So let me play these videos one by one. So ये था flexibility पे, and we are flexible on all 3 counts: time, place, topic, पूरे तीनों counts पे flexible है। Let me now play the process. ये कैसे करोगे आप?
So that's about the steps. So आपको जो मैंने बताया, आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके खुद अपने घर की कन्वीनियंस पे यू कैन राइट दी टेस्ट एंड, और इसमें अगर आप फिजिकल सेंटर पे जाते हो तो फिजिकल सेंटर पे यू कुड गेट इनटू अ क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड राइट दी टेस्ट्स. काफी सारे बच्चे फिजिकल सेंटर्स पे भी आते हैं एंड दे राइट इट, एंड बट देयर द टाइम लिमिटेशन इज बिटवीन 11 to 7. आपको उस टाइम पे आना पड़ेगा. लास्टली, so you saw, what you saw was our team which is doing this entire thing. You saw they are correcting it online and आपको वो लाइन बना के रेड करके दे रहे हैं, जैसे आपको फिजिकल पेपर में मिलता है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया. And if you take doubt solving, then you can meet our team and these individual teachers will help you correct your mistakes also on an online mode. And if you are visiting our physical center, then you can meet them physically. So you can do either physical or online. Let's continue our journey. Now, thoda sa hi bacha hai. So, effectiveness. Are we effective? So we have some data evidence to tell you how effective we are. So this is one thing which we did last year, कि जो अप्रैल मई में जो बच्चे टेस्ट लिखना चालू करते थे एंड देन जनवरी तक के उनके टेस्ट के रिजल्ट्स देखे, these are class averages. एक बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं है, करीब 15,000 बच्चों के क्लास एवरेजेस have actually improved from 70% to above 88% तक चले गए. So that is, now it is over a big statistics of 15,000 बच्चे. तो if the class average moves this high, that means ये प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों के गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं, उन्होंने क्या गलती करी, and it's an exam of the known. अब आपने अगर यही सवाल यहां गलत किया, is there a very high possibility कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा? Yes, because it's not IIT जहां सवाल रिपीट नहीं होते. बोर्ड एग्जाम में previous year board questions are often asked again and again. So अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आपने एक बार वो गलती कर दी तो आपके जहन में ऑटोमेटिक, अच्छा यार मैंने वो ऐसे करा था, तो अब वो गलती करने के चांसेस बहुत कम. So do you see an improvement? Yes, that's why such tremendous results. And the same results we saw अगर कोई मॉक टेस्ट लेता है. That was chapter test, मॉक टेस्ट. नवंबर में पहला टेस्ट लिखा, दिसंबर में सेकंड टेस्ट, जनवरी में थर्ड टेस्ट एंड फरवरी में थर्ड टेस्ट. सो देयर आल्सो वी सी कि बहुत अच्छा बड़ा इंप्रूवमेंट आता है. तो फुल टेस्ट एज वेल एज चैप्टर टेस्ट दोनों में हमको काफी बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा. दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट्स. नाउ सम स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स मैं प्ले करता हूं एक एक करके कुछ बच्चों का. अलाउ मी टू शेयर सम, यूट्यूब पे ये टेस्टिमोनियल्स हैं. अलाउ मी टू शेयर सम टेस्टिमोनियल्स विथ यू कि बच्चे एंड पेरेंट्स हमारे बारे में क्या बोलते हैं. अलाउ मी टू शिफ्ट स्क्रीन्स, एक सेकेंड. ये बच्चे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उसका एक टेस्टिमोनियल है. प्लीज लिसन. I'm really happy to say today that she have taken the efforts or guidance what is provided by UT. The methodology on which this test series was established was really awesome and wonderful, and she is able to get consistently all subjects. She is able to score more than 95%. To understand the way, the conceptuality that Universal Tutorials has put into it. They have understood the needs of the student. My busy schedule as being a consultant doctor, I could not give them enough time for their last minute preparations. So that way they were enrolled at UT test series. This series helped them during their last few months of preparation, especially after prelims. Be successful in life, you have two things. You should have two things, that is knowledge and inspiration.
And the knowledge part was the best part, which was given by the best faculty I think UT is having. And the inspirational part, I always seen Professor Anand built a strong confidence, and while performing in the exams, in the final exam, it has been a very simple thing and they have won it very easily. Really thank Anubhav Sinhal sir as well as Srivastava ma'am. It was one of the wisest decision we have taken, because Surabhi got 94% in spite of not joining the regular classes. I wish I would have made her join the regular classes. At least 3 to 4% further increase could have happened. And Surabhi solved all those 24 papers from the UT, and along with that she also did self-study and solved the board exams. So combined, this combination was a very lethal combination. UT gives them a platform to maximize their potential, motivates them to do better, and inculcates a sense of discipline both towards academics and the manner in which they behave at work and in school. I think that is the focus of UT, that it produces well-rounded children with academic excellence. So this is what you saw of about parents, and I have one student, and he is one interesting way of saying things. और मैं हर साल इस बच्चे को play करता हूँ. This is a boy who joined us, and some very interesting perspective he आपको present करेगा. Please listen to what he's saying. Of UT. On that day, my 9th report card came out. So my mother was telling that go जाओ attend करो UT. तो मैं बोला ये क्या बात हुई है, report card आज ही आया, आज से पढ़ाना शुरू. तो मैं ठीक है जाओ. तो I had no choice, क्योंकि मुझे घर के अंदर फिर लेते नहीं वो लोग. तो इस वजह से मैं जाके जब गया तो उन्होंने पहली बार शेड्यूल समझाया. 7:30 बजे से लेके तुम्हें 6 घंटा पढ़ाई होगी पूरा मई भर पूरा. ये सच में कितना पढ़ाओगे यार तुम लोग, ये वर्थ है या नहीं है. तो फिर ये सब चलता रहा, मतलब कि सुबह 7:30 बजे उठो, फिर सोचो कि क्या कर रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ. जैसे मेरे जिंदगी का डूम्सडे आया, मतलब डूम्सडे बोलना ही चाहिए, डूम्स मंथ था पूरा, मतलब पूरा 1 महीने का बोर्ड एग्जाम था वो. आदमी पक जाता है लिखते लिखते, ये मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ. तो फिर उसमें जब मैंने पहला पेपर अपना उठाया तो सोच रहा था डर लग रहा था क्या करूं. तो जब पहला पेपर जब उठाया तो देखा यार ये सब तो आता है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो टेस्ट सीरीज में हमारा कंप्लीट कर दिया था. और जो बाकी. So parents, this is what is universal tutorials. अगर आप इस चीज को समझेंगे, where what he said is वो सब कुछ मेरे को आता था. That single phenomena is, and it is not difficult because board exam is an exam of the known. अगर आप एक systematically वो सारे टेस्ट जो हमने डिजाइन करें, and हम वो एक एक टेस्ट नहीं डिजाइन करते हैं, as you take the test series, वो मेरी टीम ने इन दी मंथ ऑफ अप्रैल ही सारे टेस्ट एक साथ डिजाइन कर दिए. तो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस उन सारे चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट में स्प्रेड कर दिए. तो अगर बच्चा वो सबको लिख लेगा और उनकी प्रैक्टिस कर लेगा, देयर इज नो वे ही विल नॉट फाइंड एनी ऑफ दोस क्वेश्चंस, मिस एनी ऑफ द क्वेश्चंस. तो जैसे ये बच्चे ने बोला, ऐसे मेरे पास हर साल बच्चे आते हैं एंड दे टेल मी कि सर वो जो 30 सवाल आए उसमें से 28-29 क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहले करे थे. So this is what is the essence of the UT test series. So with this, I'm almost to the last of my thing. So अब अगर आपको इसमें और आगे मेरे से मिलके अपॉइंटमेंट लेना है, बात करनी है, तो you can call up this number, Mrs. Jyoti, and you can fix an appointment. The number of Jyoti is 7718898822. Her email is utnmjyoti@gmail.com. You can meet me or our counselor who can help you further, decide and choose a program and enroll with us. So I repeat the number 7718898822 Jyoti, and you can do this. Now, if you want to get an PDF of this copy of this presentation, you can send a hi to this number 77100-04690. So we'll send you a PDF of this presentation. And now I'm done. You can unmute yourself and ask questions. So there are two numbers. Please note down. Either if you want to call up for appointment 7718898822, or you want a WhatsApp 77100-04690. If you've noted this, then let me bring this presentation to an end. You can now ask me questions. Please unmute and ask questions or raise hands
and I'll be more than happy to answer your questions. Thank you very much. So that was about 45 minutes it took me to complete this talk. Any questions at this point of time? Unmute Hello, yourself sir. and ask. Yes. Hello, sir. I am Yes. Parvati's mom. My ward is studying in Ryan International School, Khargar, Okay. ICC pattern. So here, why she's currently 9th standard. So during the first term exams, I encountered some problems with her. Like she studies every chapter thoroughly, but what happens is that when all these things are coming together, there is difficulty for her to revise the entire thing and go for the exams. Like for the revision test, school will conduct one chapter. Again, so for the term exams, again 4 or 5 chapters will be there. So she will be falling behind that first chapter. She will forget all those things about first chapter. So is there in your test series, is there any pattern for, like, if you're saying you will conduct chapter wise test, so if 1 and 2 chapters are if is there any test for chapter 1 and 2 together, again 2 and 3 together, 1, 2 and 3 together, likewise for first chapter they will study, they will attend test, but they will forget after 2, 3, 4 or 5, 6 chapters. So is there any pattern, like whether you will include 1 and 2 clubbing of chapters and writing the exams? So, ma'am, answer is you could club it yourself. You take one chapter before chapter 1, and then you can come and club and then say that I want, because we've made it modular and we've made it flexible. अगर आप बोलोगे कि मेरे को आप M3, M4, M5 3 chapters आज 1.5 घंटे में लिखने हैं, we'll give you 3 and वो आप 1.5 घंटे में लिख के चले जाइए. So it is completely modular and you can do it your way, because that हर एक बच्चे के हर एक स्कूल की need is different. So आपने एक टेस्ट पहले लिख लिया and then you want to club it and write it again, we'll give you another paper and वो M3, M4, M5 का आप क्लब करके एक बना के लिख के चले जाइए. आप क्वेश्चन बना के देंगे क्या, मतलब सपोज फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंबाइंड क्वेश्चंस? We will have multiple sets. तो एक तरह से वो आपको she will sit there for 1.5 hours. Okay. Are you understanding? It's modular. Modular matlab you combine those 3. So she will have that 3 chapters for 1.5 hours. Okay. And next time when she comes, she'll get a different paper, and that paper she will write. And sir, one more thing, you said for the test series, test will be conducted according to the pattern of school. So like when I have inquired actually in UT Khargar at the start of 9th standard, so they said it will be clubbing of questions will be according to the, or the tests will be according to the different schools syllabus. So it will be quite difficult for us, like रायन खारगर में एक तरीके से चलते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उसी तरीके फॉलो करेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू अदर स्कूल सिलेबस. सो इसकी वजह से मैंने ड्रॉप किया, मतलब टेस्ट अटेंड करना ड्रॉप किया था. नहीं मैडम, you please understand that job the board already does it for us. हाँ. 9th and 10th are completely driven by the board. Board defines what has to be studied, schools do not follow their syllabus. It is ICSE board which defines कि क्या 9th में पढ़ना है, क्या 10th में पढ़ना है. So you may be studying in a different school, but all of them are following the common syllabus. Okay, sir, that I understood. But term exams जब आते हैं, schools will have their own set of syllabus. Ryan will follow. That's why we broken down into chapters. हाँ chapters. तो ये chapter suppose रायन खारगर में होगा तो दूसरे रायन खारगर ICSE में रायन में दूसरे स्कूल में अलग lessons होंगे एग्जाम्स के लिए, या फिर डिफरेंट ICSE स्कूल के लिए? Your chapters, na? You will write your chapters. Na? I am giving chapter wise. You will write 3 M1, M4, M7, and Okay. Ryan will write M3, M4, M5. Okay. So you have the option for that, like according to the school. You pick your chapters. We are Okay. saying completely modular. Okay. I understood, sir. Okay. So we are completely modular. We are completely flexible. Okay. Sir, and for the class 10 for next year, schools are starting from March. So will you be starting from March or will you be starting from April only? Ma'am, we start test series slightly delayed क्योंकि जब तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो टेस्ट कहाँ से लिखेंगे? So we starts 1 month delay के साथ. Okay. Yes, Achal. And sir, one more question last. Sorry, sir. One more question last. Yes, please ask. Will the papers be checked according to the board patterns?
Obviously, I mean to say that goes without saying. Model answers are with the board pattern completely. These are board checkers who are sitting at over here who have more than 20 years of experience in board coaching. Okay, okay. Thank you so much, and sorry for Achal, disturbing. please ask your question. Achal Bharambe, please ask your question. Unmute yourself. हाँ हाँ यस सर मुझे आपसे पूछना था कि मेरी बेटी का है ना अभी तो उनका फर्स्ट टर्म एग्जाम चल रहा है आईसीएसई का ही है उनका तो क्या हम अभी उनके लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं Yes, answer is टेस्ट सीरीज इज फ्लेक्सिबल. आप जैसे चाहें जब चाहें तब से चालू कर सकते हैं एंड उस दिन से आप उतने टेस्ट आपके कन्वीनियंस आपके हिसाब से आपको टेस्ट लिख सकते हैं. और इसके लिए जो स्टडी मटेरियल होगा वो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं या हमें मतलब जो हमारे पास है वही इसके लिए यूज करना होगा? We will give you a study material which is our UT volumes which will consist of all the question bank. हम स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं. आप अपना जो मटेरियल है वो तो यूज करेंगे बट वी विल आल्सो प्रोवाइड यू अ क्वेश्चन बैंक which will be a set of questions along with answers. Nilesh sir. Yeah. Yeah. Yes, sir. Got a freeze हुए थे temporarily. Okay. Okay, my team Nilesh has put up a feedback on the chat box. Request you to please answer that feedback. हम ये presentations बहुत उससे बनाते हैं. So we will really like a feedback from you. How did you like today's presentation and did we cover all your queries or not? So वो chat box पे डाला है. Till by answering questions of other parents, please do give us feedback. चलिए, I am ready to answer questions. Mrs. Achal, do you still have a question? Or anybody else, please ask a question. Anubhav sir, this is Abhijit Mukherjee. I'm Namaste. calling from Calcutta, Kolkata. Yes, tell me, sir. Yeah, my daughter is in ICSE and she is going to appear in 2025 exam. Okay. She studies in a school called Vivekananda Mission School, which Okay. is one of the top contenders of ICSE in terms of percentage. Every year, at least first 3-4 students are getting more than 98% Okay. for last 5 years or so. Okay. What I asking, sir, my daughter studies in different with different teachers for different subjects. I am more interested in this test series of yours, which you have just explained in your presentation. My question is that what would be the doubt clearing session, how it is getting performed from your end with the child? So doubt clearing session will be done over Zoom, where you will book a slot, half an hour slot with a teacher, where suppose you have a doubt in physics or you have a doubt in mathematics or you have a doubt in English. Every third Sunday of the month, we release a sign up slot with a teacher where you could meet the teacher on a Sunday and times will be released कि 11 to 11:30, 11:30 to 12, 12 to 12:30 ऐसे अलग-अलग slots होंगे. You book a slot for yourself and the teacher would be available online and then across Zoom जैसे अभी अपन मिल रहे हैं बात कर रहे हैं, she or he will help you individually with your doubts. Okay, sir. Fine, understood. One more last question. That if while going through the question or rather answering to the question, my daughter faces some issues with some specific questions, then she can make a PDF out of it, and if any sort of that facility is there. Yes, so there are 3 facilities which are there. One facility is a self-doubt clearing facility where immediately after the test you get through our system, जैसे आप test खत्म कर रहे हैं, your download link gets enabled, which is for the model answer of that test. Once you've taken the test and submitted the answer copy, then the download copy becomes available. Model answer copy download becomes available. So उसमें आपको immediately मालूम पड़ जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. That's मेरा क्वेश्चन था सर मॉडल आंसर तो एक करके बोल रहा हूँ. तो one is the self doubt model answer copy. Second is WhatsApp doubt solving.
So you could click a picture and हमारा एक official WhatsApp channel है, उस पे you can send a picture and a WhatsApp doubt कि मेरे को ये doubt है, you don't want to meet the teacher independently, you are only wanting a WhatsApp पे, so वो आप भेज देंगे तो we will revert back to you on WhatsApp कि भाई इसमें ये आपका doubt है, we'll clarify that. That is available 24/7. Acha sir, that is good enough. And Yeah. third is this individual doubt solving where you book a slot physically with a teacher on a Sunday morning. It is physically in the sense it's online, but you get to meet the teacher one-on-one. Understood, sir. Completely understood. Thanks a lot. These are the 3 channels which are available. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Any more questions? Any more questions? So I come back again. If you wish to get a PDF of this PPT, please send us a hi at 7710004690. Or if you want to enroll in the product, please call us at this number 77188988.